Good morning, students. As you know, in last class we have started chapter number 6, which name is marketing, and we know marketing includes all those activities which are related to before production, and it carries on or it continues till the satisfaction of consumer. That means after sales services is also part of मार्केटिंग. इज इट क्लियर? इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म, बहुत बड़ी टर्म है मार्केटिंग. ठीक है. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इंट्रोडक्शन एंड वी हैव डिस्कस्ड टू फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. द फर्स्ट फंक्शन वॉज मार्केट एनालिसिस. दैट मीन्स वी शुड नो अबाउट आर customer taste, preference. We should know about our competitors' policy, government policy, basic business laws. So this is the marketing analysis. Then we have to do marketing planning. That means we have to make the plans according to marketing analysis. That means consumer needs, society expectations, etc. Now in today's class we are starting a new function or third function, which name is marketing communication. Marketing communication means communication is an important function of management. Communication management का एक important function है. Every marketing manager need to keep in place an effective marketing communication system. हमें एक effective marketing communication system establish करना चाहिए. The important element of marketing communications are, किस तरह से market में communication करेंगे. First is advertisement, sales promotion, marketing research, sales creativity, publicity, feedback और survey etc. देखो ध्यान से समझना, यहाँ कम्युनिकेशन की बात हो रही है मार्केट में. मार्केट में कौन होगा? सेलर और बायर के कम्युनिकेशन. दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स और कस्टमर के बीच के कम्युनिकेशन की बात हो रही है. कैसे करेंगे? सबसे पहला होता है एडवर्टीजमेंट. एज यू नो एडवर्टीजमेंट थ्रू एडवर्टीजमेंट a producer provide all the informations of a product to the consumer, like quantity, size, color, combination, availability, etc. There are some sales promotion activities like 20% extra, 30% extra, 20% off in prices. ठीक है, buy one get one free. And marketing research, मार्केट से रिसर्च करना, like कस्टमर से सर्वे वगैरह करवा लेना, sales creativity. So by these method a producer can communicate to the customer. The elements like advertisement, publicity are used for spreading important message or information to present and prospective consumer. Element like marketing research are helpful in getting complaints and suggestion from the customer. कोई भी इन्फॉर्मेशन देने बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, सर्वे के थ्रू कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हमें अपनी नहीं कहनी है, कस्टमर की बातें भी सुननी है. तो कस्टमर कैसे कहेगा? बाय वे ऑफ सर्वे वगैरह. ठीक है, वो अपनी कंप्लेंट्स एंड सजेशंस हमें देने का काम करेगा. और ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, जो कि हम 11th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. Product design and development. After communication we have to design a product. Another important function of marketing manager is product design and development. हमें product design और development करना होता है. Product design helps in making the product attractive for the target consumers. कि हम बात करें कि product design और development की हम बात कर रहे हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? हम products बना लेते हैं. ठीक है, अट्रैक्टिव, ताकि टारगेट कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके. अ बेटर डिज़ाइन कैन इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. जितनी अच्छी डिज़ाइन होगी उतनी ही प्रोडक्ट की यूटिलिटी इंक्रीज होगी. एंड द रिजल्ट इन एनहेंस्ड कॉम्पिटेटिवनेस इन द मार्केट. और इसकी वजह से मार्केट में हम कॉम्पीट कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज मार्केट सेगमेंटेशन। Market segmentation means any organization cannot satisfy all its consumer with any of the product, कि लाइक आप हर तरह के कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स एक सिंगल प्रोडक्ट से या एक सिंगल कंपनी हर तरह के कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप फ्रॉम द होल मार्केट एंड मेक एफर्ट्स टू सेटिस्फाई देम। लाइक रेमंड्स कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स नहीं आते, एलजी कंपनी फैब्रिक नहीं बनाती है। इससे हम समझ में आता है कि आपको मार्केट का अपना एक हिस्सा सेलेक्ट करना होता है जिसके उस हिस्से के कस्टमर को हम सेटिस्फाई करने का काम करेंगे। द हेट्रोजीनियस मार्केट इज डिवाइडेड क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लाइक नीड एंड इंटरेस्ट। बात करें तो जो मार्केट में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो ग्रुप हो जाता है। लाइक फैब्रिक इंडस्ट्रीज़ एक में आ गई, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ एक में आ गई, समझ में आ रहा है? तो इन्हें कॉमन ग्रुप में बना देंगे और वहीं हमें कस्टमर की नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स प्रोड्यूस करने होंगे। द ऑर्गेनाइजेशन कैन चूज वन और मोर मार्केट डिज़ाइन एंड देयर मार्केटिंग प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द दोज चूजन मार्केट। कि मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं तो इस मार्केट से ये लोग यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। बात कर रहे हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। द टर्म स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। हम बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग की, ध्यान से समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट भी है। सो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स लाइक जो काम हमें करवाना है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसकी एक लेवल होना चाहिए। तो वी हैव टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड। द टर्म स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। सारे प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी रहे तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है, ताकि प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन जो पहले से डिटरमाइन किए गए हैं उसी स्पेसिफिकेशन से हम गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। इट अश्योर्स द परचेजर दैट द गुड्स आर अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड क्वालिटी, प्राइस एंड पैकेजिंग। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि परचेजर जो है वो पहले से श्योर रहता है कि हाँ, मैं जो गुड्स खरीदने जा रहा हूँ ये इस क्वालिटी का होगा, इस साइज़ का होगा, इस शेप का होगा, क्योंकि वो प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन को शो करता है। ग्रेडिंग इंक्लूड्स डिवाइडिंग द गुड्स। लाइक ग्रेडिंग का मतलब क्या है कि लाइक एक्सल, डबल एक्सल, आप लोग पता है कि कपड़ों की साइज़ वगैरह आती है, ठीक है। लाइक 8 नंबर का जूता, 9 नंबर का जूता, ठीक है। इसके अलावा 1 kg के पैकेट, 2 kg के पैकेट। सो कलर, साइज़, वेट, इन सब के बेसिस पे हम गुड्स को क्लासीफाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रेडिंग। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो पैकेजिंग और लेबलिंग वैसे तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केटिंग फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। पैकेजिंग और लेबलिंग बेसिकली मतलब क्या होता है आपके हिसाब से कि लाइक क्यों करते हैं हम गुड्स को पैक? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कस्टमर तक गुड्स सेफ पहुंच जाए, ठीक है। दैट्स वाई वी डू प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी मीन्स जो कि बेसिक है, जो एक बेसिक रैप होता है वो तो प्राइमरी, एंड देन कार्टन्स वगैरह में जो पैक किया जाता है वो होता है हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग, जो कि मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से की जाती है। सो वी विल डिस्कस बाय दिस पॉइंट्स वन बाय वन। It is
7th पॉइंट और 7th फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग? पैकिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, बट फिर भी वी आर गोइंग थ्रू नोट्स। पैकेजिंग इंक्लूड्स डिज़ाइनिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, कि हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेबल मीन्स डिज़ाइनिंग एंड लेबल फॉर द प्रोडक्ट। लेबल समझते हैं आप लोग, की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर लेबलिंग वगैरह की जाती है। पैकेजिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट्स कलर एंड क्वालिटी। Also the product is presented in an attractive form so that people are motivated to purchase it. Now, एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। Like if we do an attractive packing of an product, तो दूर से दिखेगा, कस्टमर को पसंद आएगा, कस्टमर खरीदना पसंद करेगा। अगर हमारी पैकेजिंग अट्रैक्टिव नहीं है, बेसिकली द मेन मोटिव ऑफ पैकेजिंग इज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूसर, बट द सेकेंड मोटिव ऑफ पैकेजिंग इज to attract consumer. By way of attractive packaging we can easily attract the consumer. Is it clear? Simple सा है। ठीक है, so consumer as time it assesses the quality of product on the basis of packaging itself. और बेसिकली क्वालिटी की जो परख होती है वो सबसे पहले पैकेजिंग से की जाती है। जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी, अट्रैक्टिव होगी, कस्टमर उससे थोड़ा एक एनालिसिस करेगा, असेस करेगा प्रोडक्ट को। पैकेजिंग हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए है, लाइक लेज, अंकल चिप्स, पैंटीन शैम्पूस, कैडबरी, शैशेज वगैरह जो आते हैं शैम्पू के, वो अच्छी पैकेजिंग के आते हैं। ठीक है, फिलहाल इन्होंने लेबलिंग की बात नहीं की बुक में, बट हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट डज लेबलिंग मीन? लेबलिंग मीन्स कि प्रोडक्ट की जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जो पैकेट के ऊपर लिखी जाती है, उसी को हम कहते हैं लेबलिंग। ठीक है, ध्यान से समझना। हमने लाइक लेस पैकेट को हमने रैप किया, ठीक है, बैग में डाला, वो क्या है, पैकेजिंग। देन हमने पैक के पीछे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, लाइक कैलोरीज, फैट, कार्बोहाइड्रेट एट्सेट्रा, एनर्जी कितनी मिलती है, कस्टमर केयर नंबर। सो ये जो कुछ भी लिखा जा रहा है, इट इज़ पार्ट ऑफ लेबलिंग। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ध्यान से समझना। पैक में, ठीक है, किसी भी चीज़ को पैक करना वो तो है, लाइक इसके बुक के ऊपर कवर चढ़ाया, किसी बुक के ऊपर कवर चढ़ाया, वो तो क्या है, पैकेजिंग। देन पैक करने के बाद हमने उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया, कुछ चीज़ें लिखी, तो वो क्या कहलाती है, लेबलिंग। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, सो बात करें तो पैकिंग और लेबलिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, उसकी सेल को इंक्रीज करने के लिए। नाउ लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मीन्स, नाउ ध्यान से समझना इस चीज़ को। मैगी जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कंपनी का है, नेस्ले कंपनी का। ठीक है, नेस्ले इज़ द ब्रांड, ध्यान से समझना। ठीक है, लाइक वॉच में भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन जो मेन है टाइमैक्स, दैट इज़ द ब्रांड। तो ब्रांड क्या होता है कि प्रोडक्ट को गुडविल देने का काम करता है। प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो, जैसे कि खूब सारे मॉडल आ रहे हैं, जैसे उसके ऊपर LG लिख दिया, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ब्रांड। ब्रांडिंग मीन्स द सिलेक्शन ऑफ अ राइट ब्रांड नेम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट। कि लाइक कार में भी बहुत सारी मारुति सुजुकी, बहुत सारी कार आ रही है, लाइक आज मारुति सुजुकी अलग हो चुकी है, तो गाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक है, लेकिन लाइक खूब सारे वेरिएंट आ रहे हैं, स्विफ्ट डिज़ायर भी आ रही है, ठीक है, इसके अलावा विटारा ब्रिज़ा भी आ रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो प्रोडक्ट है, लेकिन जैसे प्रोडक्ट के ऊपर मारुति सुजुकी लिख दिया, उसकी क्या होगी, एक इमेज बन जाएगी कि हाँ ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, जिससे कि उसको सेल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन वेदर द प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी इट बिलोंग टू अंडर अ ब्रांड नेम। एक ब्रांड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अ ब्रांड नेम डिस्टिंग्विश अ प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स, और यही ब्रांड आपके प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी से अलग बनाने का काम करता है। दिस डेवलप्स अ लाइकिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड मेक्स द सेल्स प्रमोशन ईजी। क्योंकि ब्रांड
क्योंकि पहले से कंपनी एस्टैब्लिश है, क्योंकि कंपनी पहले से अच्छी चल रही है, तो ऐसे में अगर हम ब्रांड को यूज़ करेंगे तो इट में हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन और ग्रोथ अच्छी होगी, सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प होगी। सो इट इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग। ध्यान से समझना, पैकिंग में गुड्स को पैक करेंगे, लेबल के ऊपर बेसिक डिस्क्रिप्शंस देंगे, ठीक है, लेकिन जब कंपनी का नेम मेंशन किया जाएगा प्रोडक्ट के ऊपर तो इट इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। स्टिल इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you can ask through WhatsApp during school hours. Okay, thank you students.